Hello, my dear students. I am Namita Pant, a lecturer English from Government Girls Polytechnic, Dehradun, and I am with you here to discuss the syllabus of ECS second semester, and the topic that we'll be dealing today with is resume writing. So let's understand, it's a very important topic for you, for your future. You will also write resume in future when you want to apply for a job. So let's understand how to write a resume and what is a good resume, what does a good resume look like. इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि रेज्यूमे राइटिंग क्या है, कैसे लिखना है। आप लोग उस जब उसे लिखेंगे तो उसमें आप लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ सी, employability is a critical issue these days as the job market has become too demanding for candidates. आजकल employability जो है, it is a very critical issue, बहुत important issue बन गया है, because the job market has become too demanding. Candidates के लिए बहुत ज़्यादा demanding हो गई है, ठीक है। Now if you're a job hunter, which you will be of course after a few years, आप भी job hunters हो जाएंगे, know that it's tough out there. आप जान लीजिए कि it's not very easy out there. It's tough. You are going to be looking at some fierce competition. You will be facing some very difficult and fierce competition out there in the world when you'll be searching for a job. You walk this difficult path, and one best friend who will always support you is your resume. एक अच्छा दोस्त की तरह जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, वो क्या होगा? एक आपका अच्छे से लिखा हुआ resume, ठीक है। So it will act as a friend for you. Your resume will help you bag the interview and land the position that you want. आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएगा आपका रेज्यूमे, और जिस पोजीशन पे आप जाना चाहते हो उस पोजीशन पे आपको ले जाने में हेल्प भी करेगा. So let's find out more. It is a difficult task crafting a good resume. Crafting means writing, drafting, कुछ भी है ना. क्राफ्ट है, वो एक आर्ट है. तो अच्छा रेज्यूमे कैसे लिखना है एक मुश्किल टास्क है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सीखेंगे. Sometimes you want to add the right skills for resume, but you don't get the length correct. आपको पता है कौन कौन सी राइट स्किल्स हैं आपके रेज्यूमे में ऐड करने के लिए, लेकिन आपको उसकी लेंथ नहीं पता चलती, कितनी लिखनी चाहिए आपने रेज्यूमे में, ठीक है। इट्स अ चैलेंज टू मेक क्वालिटी एंड क्वांटिटी वर्क टुगेदर एंड मेक अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर एम्प्लॉयर. क्वालिटी मीन्स आपके क्या क्या स्किल्स हैं वो इंक्लूड करना, और कितना लिखना है उसके बारे में, ये दोनों को मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. But we learn how to balance these two things here so that we are able to write a good resume. Okay. वॉट इज रेज्यूमे राइटिंग स्किल? ये होती क्या है रेज्यूमे राइटिंग स्किल? आपके सिलेबस में क्यों इंक्लूड की गई है? बिकॉज आफ्टर अ फ्यू ईयर्स यू योर सेल्फ विल बी राइटिंग अ रेज्यूमे फॉर अप्लाइंग अ जॉब, है ना. आप भी लिखेंगे इसे. सो इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक. A well crafted resume is concise, relevant, impactful and holds attention throughout. Concise होता है, it's not very lengthy, it's very brief. Concise मतलब वो brief होता है, ठीक है. Relevant होता है, it's relevant to the job that you are applying for. किसके लिए relevant होता है? जिस job के लिए आप apply कर रहे हैं ना, उसके लिए वो बहुत relevant होता है. Impactful, it leaves an impact, it leaves an impression on the minds of the one who are reading your resume, ठीक है. और attention को throughout grab करके रखता है. जब तक वो resume पढ़ते हैं तब तक उन्हें वो interesting लगता है, इतना अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए. Most importantly, it includes skills that are aligned with the position being offered. उन स्किल्स के बारे में उसमें मेंशन होगा जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट उस जॉब के लिए है. जिस पोजीशन को आप अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन के लिए आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए. उन्हें आपने हमेशा अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करना है. Okay, it is a summary of your skills and should tell the recruiters why you are best suited for the job. आपके रिक्रूटर्स को ये पता चलना चाहिए कि ये स्किल्स आपके पास हैं और क्यों आप इस जॉब के लिए बिल्कुल बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हो, ठीक है. Let's begin. Imagine your resume to be that crucial first impression you make on recruiters. अगर मान लीजिए रिक्रूटर्स के मन में आपका रेज्यूमे ही वो चीज है जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंप्रेशन उनके मन में लाएगा. It's a make or break introduction that could either make them go aha or toss it in the heap of hopeless rejects. देखो, मेक और ब्रेक टाइप की सिचुएशन होती है रेज्यूमे राइटिंग में. इट कैन ईदर मेक एन इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द रिक्रूटर और वो उसको पढ़ने को फोर्स हो जाए, और या फिर वो सोचे अरे बिल्कुल बेकार लिखा हुआ है और डस्टबिन में वो उसे फेंक दे, ठीक है. सो इट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंप्रेशन. नो, I should not say last, but it's of course the first impression that you are going to make on the minds of the recruiters.
ठीक है। योर सीवी सोल पर्पज एटलीस्ट इनिशियली इज टू बैग यू अ जॉब इंटरव्यू। शुरू में जो आपने लिखा है आपके सीवी का, उसका इनिशियल पर्पज क्या है कि आपको उस इंटरव्यू के लिए जो आप जा रहे हैं उसमें आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। Accomplishing the skills. A well-crafted resume is concise, relevant, impactful, and holds attention throughout. हमने ये पहले ही बोल दिया था ये वाला sentence. If you master the art of resume writing, your CV can also reveal a few other more subtle qualities about you. अगर आपको रेज्यूमे राइटिंग आ गया तो आपकी जो और छोटी छोटी क्वालिटीज हैं वो भी आप अपने रेज्यूमे के थ्रू बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में बता सकते हो। इफ वेल रिटन इट सजेस्ट दैट यू आर ऑर्गेनाइज। अगर अच्छे से लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो ये इंप्रेशन जाता है कि आप ऑर्गेनाइज हो, आपको सिस्टमैटिकली काम करना, आपको क्योंकि आपको सिस्टमैटिकली लिखना आता है, दैट इज वाई द रिक्रूटर्स वुड ऑल्सो नो दैट यू नो हाउ टू वर्क in an organized way, in a systematic way. Okay, so you can think clearly and have a flair for writing. आप क्लियरली सोच सकते हो, ये इंप्रेशन भी उनके मन में जाता है, और आपको राइटिंग का फ्लेयर है, मतलब आपको राइटिंग स्टाइल आता है, ठीक है। ये तीनों इंप्रेशंस रिक्रूटर्स के मन में आपके रेज्यूमे को देखकर पड़ जाते हैं, ठीक। आगे देखिए, की स्किल्स टू इंक्लूड इन योर रेज्यूमे। क्या क्या आपने रेज्यूमे में इंक्लूड करना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स एम्प्लॉयर्स लुक फॉर इन एनी एप्लीकेंट, हार्ड स्किल्स और जॉब रिलेटेड स्किल्स एंड एडेप्टिव स्किल्स। दो तरीके की स्किल्स। एक तो जॉब के लिए जो जो स्किल्स चाहिए वो तो बेसिकली चाहिए ही, जैसे मान लो आपको कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए तो वो तो होना ही चाहिए, उसके बिना आप कितने भी और एडेप्टिव स्किल्स आपके अंदर हो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। So one set is known as the hard skills and other set is known as the adaptive skills. The first category includes technical skills that qualify you for the post. So if you are a techie, you are expected to have programming skills and coding skills, while a financial analyst should have superior mathematical ability and an affinity to analyze quantitative. जो भी जॉब के लिए अप्लाई किया है हमने, अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब अगर आप टेक्निकल फील्ड में जा रहे हो तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए, कोडिंग स्किल्स आनी चाहिए, है ना। अगर आप फाइनेंशियल फील्ड में जा रहे हो तो आपको मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करने की स्किल आप में होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें तो होनी ही चाहिए, ये हार्ड स्किल्स हैं, ठीक है। अडेप्टिव स्किल्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट नेसेसरीली क्वालिफाई यू फॉर द जॉब बट विल डिसाइड हाउ सक्सेसफुल यू आर एंड हाउ फार यू विल गो। अडेप्टिव स्किल्स क्या होती हैं, जॉब दिलाने में तो वैसी हेल्प नहीं करती, लेकिन जॉब में सर्वाइव करने में आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। कि आप वहां पर कितनी दिन तक सर्वाइव कर सकते हो अच्छे से, कैसे आपको अडेप्ट, आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो वहां पर, और कितने आगे आप उस जॉब में बढ़ सकते हो, ये किस पर डिपेंड करेगा, आपकी अडेप्टिव स्किल्स पर। दिस कैटेगरी ऑफ स्किल्स इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स सच एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हो, बीइंग अ टीम प्लेयर, आप टीम के साथ कैसे काम करते हो, एडजस्ट करते हो कि नहीं वहां पे, एनालिटिकल एबिलिटी, आप किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने में आपको कितना स्किल है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, एनी सिचुएशन, है ना, यू आर एबल टू डील विद एनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन अ वेरी वेल मैनर्ड वे, तो ये भी एक एक एडेप्टिव स्किल है। मैनेजेरियल क्वालिटीज, इफ यू गेट प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ द मैनेजर, समटाइम्स डू यू हैव दैट मैनेजेरियल क्वालिटीज और नॉट, एंड लीडरशिप एबिलिटी, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर डीलिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, you need to have a team skill also and also a leadership ability. ये दोनों ही चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। When listing your skills, do not literally list them on your resume with bullets. Bullets के साथ आपको उनको लिस्ट नहीं करना है कि मुझ में मैनेजरियल क्वालिटी भी है, मुझ में लीडरशिप क्वालिटी, ऐसे बुलेट्स में नहीं बताना है आपने। ब्रीफली इलेबोरेट ऑन ईच वन विद एग्जाम्पल्स इफ पॉसिबल। एग्जाम्पल्स के साथ आप छोटा छोटा उन्हें इलेबोरेट करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ब्रीफली आप उसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट आर द बेस्ट स्किल्स टू इंक्लूड इन योर रेज्यूमे, कौन कौन से अच्छे स्किल्स हैं जिनको आप अपने रेज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हैं। सिंस द रिक्रूटमेंट मैनेजर्स आर लोडेड विद एप्लीकेशंस, वी ऑल नो दैट इट्स हाईली क्रूशियल फॉर द एप्लीकेंट्स टू मेक देमसेल्व्स स्टैंड आउट बाय मेकिंग देयर रेज्यूमेज यूनिक एंड इंटरेस्टिंग। अपने रेज्यूमेज को यूनिक और इंटरेस्टिंग बना करके वो इंटरव्यू में अपने एप्लीकेशन के साथ स्टैंड आउट कर सकते हैं, मतलब दिल स्टैंड apart from all the other mob that is standing there, ठीक है। A recruiter will spend at max only 2-3 minutes on a resume and decide whether to weed out the candidate or to shortlist them for him for a interview. जो recruiter है वो 2-3 मिनट देखेगा बस आपके resume को, और उससे ही decide कर लेगा कि आपको interview के लिए बुलाना है या आपको हटा देना है, ठीक है। So important is resume.
सॉफ्ट स्किल्स ऑन योर resume आर एज नेसेसरी एज हार्ड स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है. Hence keep in mind to include both of them in your resume in a particular order of their relevance. Computer skills, leadership experience, communication skills, interpersonal skills, problem solving talent and organizational skills are some of the skills to add to your resume to make it more appealing. ये कुछ स्किल्स हैं जिनको आपने ऐड करना चाहिए अपने रेज्यूमे में. इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सिर्फ एग्जाम पर्पज से मत देखिएगा. ये आप जब रेज्यूमे लिखेंगे ना तो ये टॉपिक आपका उस समय बहुत हेल्प करेगा आपको. ठीक है, सो ये सारी चीजों को आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं. आगे देखते हैं टॉप सॉफ्ट स्किल्स टू इंक्लूड इन योर रेज्यूमे. आप कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स कर सकते हैं. योर सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव और रिड्यूस योर चांसेस ऑफ बीइंग रिक्रूटेड. इट इंटरेस्ट योर हायरिंग मैनेजर एज मच एज एनी अदर स्किल्स. दे वांट टू नो यू एज अ पर्सन और वेदर यू विल बी एबल टू फिट वेल इनटू द इंस्टीट्यूशन. वो जानना चाहते हैं आपको एज अ पर्सन, वो आपको जानना चाहते हैं आप इंस्टीट्यूशन में फिट हो पाओगे कि नहीं. आप में हार्ड स्किल्स पूरे हैं लेकिन अगर आप में सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अडेप्ट करना वहां पे, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा रिक्रूटर के लिए आपको जॉब देना. ठीक है. स्मार्ट मैनेजर्स नो दैट अ पर्सन विल हैव पुअर कम्युनिकेशन एंड नो टीम स्पिरिट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द एंटायर टीम एंड एनवायरमेंट ऑफ द ऑफिस कल्चर एंड दिस मे टेक अ हैवी टोल ऑन द वर्क प्लेस. अच्छे मैनेजर्स को ये पता होता है कि जिनमें सॉफ्ट स्किल्स नहीं होते हैं, जिनमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं है अच्छा, जिनमें टीम स्पिरिट नहीं है अच्छी, वो ऑफिस के एटमॉस्फेयर को बड़ा टेंस बना देते हैं, बड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं. ठीक है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है उससे एंड दिस इज नॉट अ गुड एनवायरमेंट फॉर अ वर्क प्लेस. तो इसलिए वो आपको रिक्रूट करने में डरेंगे. ठीक है, अगर आप ये सॉफ्ट स्किल्स उसमें इंक्लूड नहीं करोगे. ठीक. Your resume skills and performance in the interview will help the employer be assured that you will not only do your job well but also add to the team and help it thrive. आपके रेज्यूमे से ही पता चलेगा इंटरव्यूअर को कि आप जो हैं वो ना केवल अपना जॉब अच्छा करोगे बल्कि यू विल बिल्ड द टीम. ठीक है, एंड यू विल हेल्प इट फ्लरिश. आप उसे हेल्प करोगे बढ़ने में आगे, आप टीम को चलाने में बहुत ही हेल्प करोगे. ठीक है. सो बिफोर एडिंग द सॉफ्ट स्किल सेट फॉर योर रिज्यूमे, रिव्यू द ड्यूटीज ऑफ द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर एंड पिक ओनली द रेलेवेंट स्किल्स. तो जब आप अपना रेज्यूमे बना रहे हो तो उससे पहले ये देख लो कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से सॉफ्ट स्किल्स सेट आपको वहां पर चाहिए, और उस हिसाब से अपनी ड्यूटीज जो आपका पोजीशन वहां पे आप लेने वाले हो उसके हिसाब से अपने सॉफ्ट स्किल्स को अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करो. इसका मतलब क्या हुआ कि हर कंपनी के लिए दिया गया आपका रेज्यूमे सेम नहीं होना चाहिए. आप जहां जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन के हिसाब से आपको सॉफ्ट स्किल्स अपनी देनी पड़ेंगी. मान लो आप कहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कर रहे हो तो वहां पे तो आपको टीम वर्क आपको बताना पड़ेगा. लेकिन अगर आप कहीं मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे टीम वर्क तो बताना ही पड़ेगा, साथ में लीडरशिप स्किल्स भी आपको अपनी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी. समझ गए आप. ठीक है, आगे देखिए. एडेप्टेबिलिटी. एडेप्टेबिलिटी मतलब हर एनवायरमेंट में एडजस्ट होने की क्वालिटी, दैट इज नोन एज एडेप्टेबिलिटी. दिस स्किल इज एज इंपॉर्टेंट फॉर अ फ्रेशर एज इट इज फॉर एन एक्सपीरियंस इंडिविजुअल. देयर कैन बी अ नंबर ऑफ सिचुएशंस इन योर वर्क लाइफ वेर यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शंस. आपको डिस्टर्बेंसेस मिलेंगी आपकी वर्क लाइफ में. कंपनीज वांट एम्प्लॉइज हु कैन इजीली एडजस्ट एंड अडाप्ट टू द चेंजिंग सिनेरियोज अराउंड देम. जो भी चेंजिंग सीन्स आपस में यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलती रहती हैं उसके हिसाब से जितनी जल्दी आप एडजस्ट कर जाते हो उन लोगों को रिक्रूटर्स जो हैं पसंद करते हैं. ठीक है. Attention to detail. We are human beings and one trait that makes our nature is making mistakes and learning from them. Even though mistakes are bound to happen, mistakes in businesses make you pay in time and money. Mistakes से क्या होता है, बिजनेस जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, वो उसमें असर पड़ता है. ठीक है, तो उसमें कभी कभी टाइम का असर पड़ जाता है, टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है आपको जो है मनी में भी उसको पे करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है, पैसे का भी नुकसान हो जाता है कई बार इसकी वजह से. ठीक है. वन वे टू शोकेस दिस ट्रेट टू योर प्रोबेबल एम्प्लॉयर इज बाय सबमिटिंग एन एरर रिडन रेज्यूमे एंड कवर लेटर. एक तरीका क्या हो सकता है इसका कि आप जो है एरर फ्री अपना रेज्यूमे बनाएं, इतने अच्छे से उसे रिव्यू करें कि उसमें कोई एरर रहने के चांसेस ही ना हो. ठीक है. कोलैबोरेशन. योर इंटरपर्सनल स्किल्स. कोलैबोरेशन माने दूसरों के साथ कैसे आप कोलैबोरेट करते हो, कैसे काम करते हो. इससे क्या, इसके लिए क्या चाहिए आपको, इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे डील करते हैं. योर इंटरपर्सनल स्किल्स विल कम इन हैंडी इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन अ टीम. हाउ वेल अ रैपो यू शेयर विद द मेंबर्स ऑफ योर ओन टीम एंड द मेंबर्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स विल बी एन एसेंशियल सॉफ्ट स्किल टू हैव.
ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है जो आपको, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी. यू कैन साइट एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ व्हेन यू वर एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन अ प्रोजेक्ट और इंसिडेंट्स वेयर यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेसफुल पार्टनरशिप. आप एग्जाम्पल्स कैसे दे सकते हो? कॉलेज लाइफ में जब थे तो आपने कैसे किसी प्रोजेक्ट में एक्टिव पार्टिसिपेट किया था, या जहां पे आपने सक्सेसफुल पार्टनरशिप करी हो वहां उसका कोई एग्जाम्पल आप वहां पे कोट कर सकते हो अपने रेज्यूमे में. ठीक है. फोर्थ इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द मोस्ट सॉट आफ्टर की स्किल. सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है ये. ठीक है. द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्किल ट्रांसेंड्स इंडस्ट्रीज एंड पोजीशंस. ये तो इंडस्ट्री से लेके पोजीशन से लेके सब जगह ये उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है कम्युनिकेशन. verbal writing and presentation skills are important skills to have. verbal writing, आप verbal writing भी कर सकते हैं, presentation भी कर सकते हैं. employers look for people who can present in front of an audience with confidence. ऐसे लोगों को वो लोग चाहते हैं जो audience के सामने confidence से अपने आप को present कर सकते हैं. okay. creativity. one can never deny the importance of a fresh new idea. if you are creative enough, you will bring up new ideas for the organization and this will help the organization grow. है ना. इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प होगी. सो यू शुड ऑलवेज कम अप विद फ्रेश न्यू आइडियाज. ठीक है. कोई प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए. सो दिस शोज दैट यू आर क्रिएटिव विद योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑलवेज लव दोज पीपल हु हैव दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. ओके. नए पुरानी प्रॉब्लम्स हो चाहे नए प्रॉब्लम्स हो, उनको नए अप्रोच से वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ऐसे एम्प्लॉयज को बहुत पसंद किया जाता है एम्प्लॉयज में. दे लुक फॉर कैंडिडेट्स हु एक्टिवली चैलेंज द स्टेटस क्वो एंड ऑफर नॉवल सॉल्यूशंस. नए नए सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, इनको वो लोग बहुत पसंद करते हैं. ठीक है. कस्टमर सर्विस. द सक्सेस ऑफ अ कंपनी इज मेजर्ड इन द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स कस्टमर सर्विस. उनकी कस्टमर सर्विस कितनी एफिशिएंट है इस पर बहुत डिपेंड करता है कोई कंपनी की सक्सेस. एम्प्लॉयर्स वांट देयर स्टाफ टू बी ऑन टाइम, whether it's about the submission of a project on time or merely coming to the office on time. प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करना है, चाहे वो हो चाहे ऑफिस टाइम पे आना हो, दोनों एम्प्लॉयज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एम्प्लॉयर्स वांट समवन डेडिकेटेड एंड समवन हु कैन मीट द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस. दे ऑलवेज रिक्वायर पीपल हु आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द पर्पस फॉर विच दे आर डूइंग द जॉब एंड satisfying the customers. Okay. Decision making. That means you are in a position, you know how to make decisions on some difficult point. ठीक है. allowing a person to make their own decisions give them a certain level of autonomy and a little confidence to the employee that his boss believes in his sagacity. ठीक है. कि आप अगर डिसीजन मेकिंग हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एम्प्लॉई उससे खुश रहता है कि उसके पास कुछ पावर है डिसीजन मेकिंग की. द मैनेजर्स मस्ट अलाउ देयर एम्प्लॉइज टू असेस अ सिचुएशन एंड डिटरमिन द नेक्स्ट स्टेप्स एंड नॉट रिलाई ऑन देयर सुपीरियर्स गाइडेंस एट एवरी स्टेप. हर स्टेप पे सुपीरियर से पूछना, दैट डज नॉट मेक अ वेरी गुड सीन. इससे अच्छा कोई सीन नहीं बनता. तो आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर डिसीजन मेकिंग वाली क्वालिटी दिखानी है. ठीक है. Empathy. Now, this is different from sympathy. See, empathy is a valuable trait as it allows the candidate to put himself in others' shoes and relate to their feelings. क्या होता है इससे? कैंडिडेट जो है दूसरे की सिचुएशन को समझ पाता है, दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाता है. दैट इज नोन एज एम्पैथी. ठीक है. अपने आप को उस पोजीशन पे रख के समझ पाता है. इट इज क्रूशियल इफ यू वांट टू एंगेज विद देम एंड शेयर अ गुड रैपो इफेक्टिवली. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ रैपो रखना चाहते हैं, अच्छी रैपो रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एम्पैथी वाली स्किल जरूर चाहिए. ठीक है. लीडरशिप, ऑफ कोर्स दिस वी हैव डिस्कस्ड. लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए. आपको मालूम होना चाहिए अपनी टीम को कैसे इंस्पायर करना है, कैसे मोटिवेट करना है. ठीक है. और क्योंकि अगर आप इंस्पायर और मोटिवेट करने की क्वालिटी आप में होगी, दैट विल मेक नॉट ओनली मेक यू अ गुड लीडर बट दैट विल हेल्प द टीम एज वेल. है ना. आपकी टीम भी एक ग्रुप की तरह काम करेगी और उसको भी हेल्प मिलेगी. ठीक है. नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग. वन थिंग एट अ टाइम वाला नहीं जमाना है आजकल ना. तो आप मल्टीटास्किंग कैसे हो? आप एक, जब वर्किंग आवर्स बहुत ही पीक पे होते हैं, आप उस समय कैसे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हैसल के आप मल्टीटास्किंग कर लेते हो? प्रेजेंट डे ऑफिसर्स आर वे बिजियर देन इन द पास्ट. बहुत बिजी ऑफिसर्स होते हैं आजकल. है ना. एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप कैसे मल्टीटास्किंग भी अच्छे से कर सकते हो. ठीक है. What is the appropriate length of a good resume? कितनी लेंथ होनी चाहिए? The most appropriate length of a resume is 1 page, but of course it can go over a page. थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है. But keep in mind, don't write unnecessary information and experience. Unnecessary चीजों को उसमें बिल्कुल भी include नहीं करना है. What is the best format for a resume? There is no best format as such for resume writing. Your resume is more about the content.
follow any format, but what matters more is how well you have utilized a section, कि आपने उसके sections को कैसे utilize किया है, क्या important चीजें उसमें दी हैं. unnecessary चीजें भर दोगे तो एक पेज तो वैसे ही खत्म हो जाएगा. तो ध्यान दो कि वहां पे बहुत important और relevant चीजों को ही आपने लिखना है. Your success depends on what you have done with your resume and what you are trying to accomplish. आप क्या पाना चाहते हो, क्या आपने अपने resume में शो किया है, ये दोनों ही चीजें दिखाना आपके लिए बहुत जरूरी है. However, the most widely used format for a resume is the chronological resume. जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो chronological resume होता है. chronological माने डेट वाइज, सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे इसको कहते हैं chronology. ठीक है. सो chronological resume सबसे ज्यादा पॉपुलर है. देखो सैंपल मैंने आपको एक दिया हुआ है. कैंडिडेट का नाम है सागर शिंदे, उसके बाद उसने लिखा है अपना कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद उसने अपना ईमेल आईडी लिखा है. फिर करियर ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है, सीकिंग अ चैलेंजिंग पोजीशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग सो एज टू यूटिलाइज माय स्किल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल ग्रोथ. ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ चाहता हूं और इंडिविजुअल ग्रोथ भी चाहता हूं, दोनों ही उसने साफ साफ लिखा है ना. स्किल सेट्स क्या है, एक्सीलेंट नो हाउ ऑन इकोनॉमिक थियोरीज एंड अकाउंटिंग, ये इसके स्किल सेट है बेसिक. स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू डील विद पीपल डिप्लोमेटिकली, क्विक लर्नर. एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है ये सब लिखा हुआ है उसने. ठीक है. HSC सब लिखा हुआ है. टेक्निकल स्किल्स क्या क्या है, MS ऑफिस आता है, डेटा एनालिसिस विद MS एक्सेस एंड एक्सेल, नॉलेज ऑन SAP बिजनेस वन मॉड्यूल्स, ये सारा. अचीवमेंट्स क्या क्या है, गोल्ड मेडल ड्यूरिंग ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, SAP सर्टिफिकेशन, NCC हेड ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, देखो ये भी लिखा हुआ है उसने. पर्सनल डिटेल्स दी हुई है अपनी, डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं, हॉबीज क्या है उसकी, एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ उसने अपने रेज्यूमे में दिया हुआ है. सो दिस वॉज अ शॉर्ट फॉर्म. एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल रेज्यूमे है कि ऐसा एक रेज्यूमे बनाया जा सकता है. ठीक है. इसमें आपके हार्ड स्किल सेट्स भी दिए हुए हैं और सॉफ्ट स्किल सेट्स भी दिए हुए हैं. ठीक है. लेट्स समराइज. बाय इंप्रूविंग योर रेज्यूमे यू इंप्रूव योर रिजल्ट्स. अगर आपका रेज्यूमे इंप्रूव हो चुका है तो आपके रिजल्ट्स भी जरूर इंप्रूव होंगे. सिंस रेज्यूमेज एंड कवर लेटर्स आर डिजाइन टू गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड इंटरव्यू, not taking the time to improve these documents can greatly impact the number of interviews you get. If you don't write a good cover letter, if you don't write a good resume, your chances to apply for a job and going down to an interview, going to the level of an interview will be very difficult. ठीक है. They will weed you out, they will leave you if you don't show your presence through your resume. ठीक है. Since you have already taken the time it takes to write a resume, why not take a little bit of time, little bit more time it takes to improve it in order to get better results. अच्छे रिजल्ट, जब आप रेज्यूमे लिख ही रहे हो तो थोड़ा सा और टाइम उसमें स्पेंड करके उसे एक अच्छा रेज्यूमे बनाओ, ताकि आपका रेज्यूमे देख करके आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेज्यूमे राइटिंग. आई होप ये रेज्यूमे राइटिंग का जो प्रेजेंटेशन है, इट नॉट ओनली हेल्प्स यू इन योर एग्जाम्स नाउ फॉर द सेकेंड सेमेस्टर, बट ऑल्सो हेल्प यू आउट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब. आप उन दिनों भी इस प्रेजेंटेशन को देखिएगा, इसकी हेल्प से अपना एक अच्छा सा रेज्यूमे प्रेजेंट कीजिएगा ताकि आप जॉब सक्सेसफुली पा सकें. ठीक है. विद ऑल दीज गुड विशेस आई बिड यू गुड बाय and wish you all the luck in the world for your successful future. Take care and goodbye.